Following is your hour of patient at 8 a.m. in the morning. Your task is to diagnose each case, prioritize, and discuss management with the examiner. Your team, SR yourself, resident 4th year, 3rd year, 1st year resident, and 2 house officers. My first scenario is Gravida 3 para 2, previous SVDs in labor. Rupture of membrane 10 minutes back, followed by fetal bradycardia. Fetal heart 90 per minute. On examination, os 3 centimeter, membranes absent, cord felt. I will prioritize this patient first because this is an obstetric emergency, and I will call for help. Call for help for senior anesthetist, neonatologist, and in my team there will be one house officer and a 4th year resident. First of all, I will make sure. First of all, I make sure the patient position to be left lateral, or head should be down, or I will make a pillow under the buttocks to elevate the presenting part to decompress the cord. Then I will pass IV line and will give IV fluid to the patient. And if my patient is in labor, so I will make tocolysis. Then after informed consent, about the baby, I will make sure to shift the patient in OT. I will mobilize the OT team, and I will make sure to deliver the baby in within 30 minutes. I will hand over this patient to the 4th year team, a 4th year resident, to deliver the baby as soon as possible. And I will give the fastest. My choice of anesthesia in this case will be according to anesthetist, but for rapid action it should be general anesthesia to decrease the time. And then I will hand over the baby to the neonatologist, and in post I will explain the post-op management, and then in post-op management I will make sure the post-op thromboprophylaxis also. Next, and then my next patient in the my priority list is second patient is Gravida 2 para 1, previous 1 scar with labor pains for 30 minutes. On examination, 3/10 palpable contractions and scar tenderness positive. Fetal heart is 105 per minute. This patient is most likely is scar dehiscence. As she had scar tenderness positive and in fetal bradycardia. This is also an obstetric emergency. I will call for help to senior anesthetist, neonatologist, and I will handle as SR this patient in my team. Then first of all I will make the position in left lateral. I will pass to IV cannula 14 gauge. I will take a 20 ml of blood sample for cross match and save. I will arrange blood. I will arrange blood for this patient. Then I will take the informed consent of the patient regarding her baby outcome and intra-op complication, like this can be uterine rupture, as she may be encountered adhesions in this patient, as she's previous one scar and difficulty in such cases. So I will take the informed consent in this patient, and I will also shift this patient as soon as possible and deliver the baby in OT. And then I will hand over the baby to neonatologist, and I will make sure the post-op thromboprophylaxis in this patient also. Then in my list, the third patient which I will prioritize is patient 5, which is Gravida 3 para 2 at 30 weeks with complaint of raised blood pressure. On examination, BP 150/100, fundal height 30 centimeter, longitudinal cephalic, fetal heart positive, and CTG reactive.
I will, in my team, I will hand over this patient to third-year resident. First of all, I will make sure the detailed history in this patient regarding the onset of her BP. Either this is chronic hypertension, this is pregnancy-induced hypertension, and then or it preeclampsia. I will make rapid history of sign and symptoms of the patient, her onset, her headache, blurring of vision, pain abdomen. Then I will stabilize this patient. Then I will do the rapid obstetric examination in this patient, and I will check the tendon reflexes also in this patient. I will in my investigation, I will do her I will urine urine for protein and creatinine protein ratio, or rapid protein test, then to make sure my diagnosis. Then I will also need her CBC count, liver function test, renal function test in this patient. And also I will need I will need obstetric ultrasound for this patient. Then I will make her stabilize. I will check her BP, repeat. I will then if on the second reading, the reading is again 150 by 100, or then I will start on medication, and medication to her. And I will give her antihypertensive, and I will admit this patient. I will admit this patient, and then I will manage accordingly. And then my fourth patient in my priority list is Lambda 5 para 4, previous SPD at 32 weeks with complaint of intermittent lower abdominal pain. On examination, 2/10 palpables for 20 seconds. CTG is reactive, os 2 centimeter dilated, media, posterior, full length, membrane intact. I will hand over this patient to first year resident. Is most likely this patient had is most likely in preterm labor. So first of all, I will take detailed history of this patient regarding her previous deliveries, either it is preterm deliveries or PPROM. I will make a rapid history of this patient. Then I will give DEXA cover to this. I will admit this patient. I will give DEXA cover to this patient. And I will also give tocolysis to this patient, and will keep her under observation. And I will also inform about this patient that she can be progressed to labor, and I will inform neonatologist to make availability of a cot in ICU. Then my last patient in my list is primary gravidine labor at 39 weeks, fully dilated for 30 minutes. Fetal heart 130-minute 3/10 palpable contractions. I will also hand over this patient to third-year resident and one house officer. This patient is in a low risk patient. She's only dilated, fully dilated for 30 minutes, and her fetal heart is also okay, but she had 3/10 palpable contractions. So I will manage her according to labor care guide. I will check her fetal heart rate every 15 minutes, and then I will and also I will check palpable contractions half hourly. As my patient has 3 contractions in 10 minutes, so I will I will start. I can augment this patient also with 10 international units syntocinon to increase the contraction to 5 contractions per 10 minutes, and then I will manage according to this patient to labor care guide, and I will make sure to deliver this patient spontaneously. Sir, अब 10 मिनट पूरे हो गए वैसे। जी सर।
आपकी टास्क क्या थी? सर टास्क में ये था कि मैंने डायग्नोस करना था पेशेंट को और मैनेज करना था। आपकी टास्क क्या थी? उससे पढ़िएगा। सर डायग्नोस ईच केस, प्रायोरिटाइज एंड डिस्कस मैनेजमेंट विद द एग्जामिनर। ओके। तो इसमें से आपने एग्जामिनर के साथ डिस्कस क्या चीज की है थ्रू आउट दिस लास्ट 10 मिनट्स? सर वो मुझे हर टास्क के एंड पे करना चाहिए था, हर पेशेंट के एंड पे, लेकिन मुझे था शायद मैं एंड पे करूंगी। एंड पे तो आपका टाइम खत्म हो गया। एंड में तो यू जस्ट फिनिश बेयरली राइट एट द क्लॉक। जब आपकी बेल बजी तो आपने लास्ट वाले को जो क्राइटेरिया आपने किया उसके बाद। तो व्हाट डिड यू डिस्कस विद योर एग्जामिनर? जी सर। सर वो डिस्कशन का वाला मैंने देखा नहीं कि वो एग्जामिनर के साथ डिस्कस करना था। ये तो अरे, ये तो वो चीज नहीं है जो आपको 1 मिनट पहले उस ये कब की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई थी सारी। जी सर। ये सारी इंफॉर्मेशन देखो एग्जाम में तो आपको उस टाइम ही फौरन मिलती है। यू नीड टू दैट। आई हैव नो आइडिया कि इमरान ने आपको कब से भिजवाई हुई थी। जी सर कल से भिजवाई हुई थी, लेकिन बस सॉरी सर, मुझे ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि मुझे रुकना चाहिए था। देखो, पहली बात तो ये है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस दी जाए यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। और इसमें मुझे आपने डायग्नोसिस किस किस के बताए? सर Your task is to diagnose। आपने किस किस केस के डायग्नोसिस बताए? सर कॉर्ड प्रोलैप्स। Was it cord prolapse or cord presentation? सर उसका असल में ना वो था, मेम्ब्रेन क्या था एब्सेंट है उसके। मेम्ब्रेन वाज उसमें? एब्सेंट एंड कॉर्ड फेल्ड। Was it cord prolapse or cord presentation? और इन दोनों में कोई सर इन डिफरेंस है? Yes, sir. In cord presentation, membrane is present, and we feel the membranes, and we feel the cord within the membranes. ओके। जी और sir. cord prolapse में? Sir, in cord prolapse, there is absent of membranes, basically. Are you sure? Yes, sir. I'm की बात sure. है। Sir, according the cord prolapse is most likely in rupture of membranes. आप मुझे कह रहे हो कि cord prolapse को आप डिफाइन करते हो जब मेम्ब्रेन्स एब्सेंट हो। अगर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हो तो फिर cord prolapse नहीं होता। फिर फिर वो वो cord cord presentation। presentation. जी फिर वो सर। cord presentation हो जाती है। जी सर। एक सेकेंड। umbilical cord prolapse ही मैं पढ़ रहा हूँ किसी आर्टिकल से, मैंने भी निकाला है आपके सामने। umbilical cord prolapse can be overt or non-overt. In overt collapse, the cord slips ahead of the fetal presenting part and collapses into the cervical canal, vagina, or beyond. It is an obstetric emergency. इसका क्या मतलब है? कि सर अगर ये हेड के पास से एवर्ट हो रही हो, हाँ, तो ये भी कॉर्ड प्रोलैप्स ही होती है। ये भी cord prolapse होती है। जी। This system cord prolapse umbilical cord has। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे ही पढ़ रहा हूँ। That has collapsed past the fetal presenting part and beyond the internal cervical os. Cord
Presentation refers to an umbilical cord ahead of the fetal presenting part but above the internal cervical os. And compound cord presentation refers to both the cord and the fetus presenting above the internal cervical os. Any of the three clinical scenarios can occur with either intact or ruptured membranes. जी सर, इनमें क्या फर्क है? मतलब सर कॉर्ड प्रोलैप्स और प्रेजेंटेशन दोनों रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के साथ भी हो सकती है। नंबर 1, शाबाश। नंबर 2, और सर विद इन मतलब सर इनका मतलब है कि कॉर्ड प्रोलैप्स जो है विद इन इंटरनल सर्वाइकल ऑस, मतलब तक अगर उसमें भी होगी, होगी। तक होगी तो फिर क्या होगा? तो सर इसको भी हम कॉर्ड प्रेजेंटेशन कह सकते हैं अगर कह सकते हैं कि होती है। होती है सर। हाँ, कह सकना और होता फर्क चीज है। जी सर। बट साइंटिफिकली प्रूवन कि जी जब अगर कॉर्ड इंटरनल लॉ से नीचे आ जाती है तो फिर जी देन सर। इट इज अ कोलैप्स। जैसे यूट्राइन का कोलैप्स आपने ग्रेडिंग की हुई है। जी सर। अगर वो इंटरनल लॉस के लेवल से ऊपर है और अंदर है तो देन इट बिकम्स कॉर्ड प्रेजेंटेशन। यू गेट दैट कि नहीं? सर मुझे अब समझ आ गई है। आई उससे पहले ओके। मुझे नहीं पता था। तो जब आप ये डिस्कस कर रहे होते अपने एग्जामिनर से, जब आपने क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ना था, तो फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू फिगर इट आउट कि इट्स अ प्रेजेंटेशन और इट्स अ कोलैप्स। ठीक। ठीक है जी सर। नंबर 2 आपने क्या बताया था, पेशेंट को क्या डायग्नोसिस था? सर इसका वो था स्कार डिहेसेंस और एमिनेंट रप्चर। डिहेसेंस के और रप्चर में दोनों में क्या फर्क है? सर जो स्कार डिहेसेंस होते हैं उसमें अभी तक मतलब सिर्फ ओनली एमनियोन जो है वो आउट हुई होती है स्कार लाइन से। ओके। मतलब बाकी स्कार लाइन इंटैक्ट होता है उसमें, मतलब सिर्फ एमनियोन का पार्ट या एमनियोन हमें नजर आ रही होती है उसमें से। और सर जो रप्चर होते हैं उसमें तो पूरी स्कार लाइन होती है, तो इंटैक्ट नहीं होगी। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसमें दूसरा इशू क्या था इस पेशेंट में? शी सर इज इस पेशेंट में दूसरा इशू हाँ, ठीक। फीटल, सर फीटल ब्रेडिकार्डिया के साथ है ये भी। फीटल हार्ट 105 है इसके, और इसका स्कार टेंडरनेस पॉजिटिव है। ओके, फिर और इसमें क्या सर इसकी करते तो हैं? सर असल में तो इसकी लेबर की ड्यूरेशन भी सिर्फ 30 मिनट्स है। और हाँ, इसमें भी सर मुझे हिस्ट्री लेनी चाहिए थी, लास्ट स्कार के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि वो आइदर इट वाज क्लासिकल और आइदर वर्टिकल स्कार, ड्यूरेशन कितना है लास्ट चाइल्ड बर्थ इसका। और शाबाश उसके बाद और बेटा। अभी चलो वो तो हो गया, पास का आपने हो गया। जी मुझे सर। जल्दी से आप पूछ लोगे अगला स्टेप। इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में के अंदर जब भी आपके पास आते हो, आप लेबर रूम में खड़े हो, एज ए सीनियर सर आपको क्या कहता है कि जी इसकी लो डाउन पेन भी है और पेन के बाद टेंडरनेस, सॉरी उसने लिखा हुआ है सही है, कॉन्ट्रेक्शंस आ रही हैं और फीटल हार्ट स्ट्रेंथ भी आपको 105, फिर क्या करते हो आप? सर सबसे पहले तो मैं इसकी कॉन्टिन्यूअस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करूंगी, और विद मतलब मैं इसकी सीटीजी लगाऊंगी और विद कंट्रैक्शंस उसके मॉनिटर करूंगी कि इसका यू नीड फीटल टू हार्ट का हैव, पैटर्न। देखो यू नीड टू हैव कि उस टाइप पे कि इसकी फीटल हार्ट रेट का पैटर्न क्या है। जी अगर सर। वो लेट्स सपोज ब्रेडिकार्डिया है, वो कंटिन्यूस ब्रेडिकार्डिया है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और उसके बाद आगे आप जाके दोबारा उसको रीअसेस करोगे कि जी कि फिर हमने इसको कितना क्या कर। जी सर। ठीक। जी सर। बाकी 3 केसेस तो एक जो था वो फुली डायलेटेड है, प्राइमरी ग्रेविटा है, 30 मिनट्स पे है।
और एक प्री टर्म है 32 वीक्स पे, उसका हमने क्या करना था नंबर 4 वाले केस का? सर इसमें भी मैं उसकी पहले हिस्ट्री लेती कि उसमें उसकी प्रीवियस जो डिलीवरीज हैं वो फुल टर्म है, प्री टर्म है, पी प्रॉम के साथ थी या क्या। और उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग तो हमें दी हुई है कि 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है और फुल लेंथ है। तो इसको मैं सर डेक्सा कवर देती और टोकोलाइज करने के लिए मैं इसको तो मैनेज कंसिडर किसने करना करती। था? आपने ये नहीं बताया फ्लो। सर मैनेजमेंट में मैं इसको सर सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करूंगी न्यूट्रॉल, इसको पहले एडमिट करूंगी। एडमिट करके मैं इसको डेक्सा कवर में देती इसको बेटा इसकी और मैनेजमेंट कौन करेगा जो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 लोग जो है? सर थर्ड ईयर रेजिडेंट। थर्ड ईयर रेजिडेंट थर्ड ईयर। करेगा। जी सर। और बेसिकली मैनेजमेंट में इसमें आपने क्या, इसको क्या करना है, इसकी तो पॉलिसिस करनी है, क्या करना है? सर इसको तो मैं टोकोलाइज डेक्सा कवर और ऑब्जर्वेशन के लिए और मैं अभी इन्फॉर्म। फॉरेन डॉक्टराइज कर दोगे आप? जी बेटा सर ये सर। देखो, मेरी मेरी बात सुनो ऑनेस्टली। ये जी तो सर। वो सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि हर किसी ने जब लेबर रूम में गया है तो उसमें करते ही करते हैं। इसमें क्या इशू है? अब प्री आप टर्म उस का पोस्ट। इशू। हाँ। हाँ सर प्री टर्म का इशू है। ओके, प्री टर्म का इशू है, आपने डायग्नोज कर दिया कि शी इज इनटू प्री टर्म लेबर? इज इट कंफर्म? I will I will reassure I will reconfirm this patient of in observation। मैं वो इसके। ऑब्जर्वेशन आप, अच्छा चलो ठीक, आपने कहा कि जी पहले मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जी वो सर। ऑब्जर्व कौन करेगा? सर ऑब्जर्व मैं हाउस ऑफिसर और थर्ड ईयर रेजिडेंट। आप हाउस अफसर और थर्ड ईयर रेजिडेंट को इस पे लगा दो। जी सर। दैट ओके? आपने ऑब्जर्व क्या कराना है? सर मैंने इसकी कंट्रैक्शंस ऑब्जर्व करानी है। और intermittent lower abdominal pain, so fetal heart pattern contractions। ठीक, यही कॉन्ट्रैक्शंस होगी, पेन्स होगी, एक ही बात है, आगे? और fetal heart। और कुछ टेस्ट भिजवाओगे, यूटीआई ना हो, जी कोई प्रॉब्लम ना हो? जी सर। ठीक, ये कौन करेगा? ये आप सर खड़े होके ये करोगे या थर्ड ईयर रेजिडेंट करेगा खड़े होके? ये किसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि बेटा बैठो इसके सर पे और इसके जाके जरा पेट पे हाथ रखो, उसके देखो कॉन्ट्रैक्शन कैसी आ हाउस रही ऑफिसर्स। है? तो फिर व्हाई द थर्ड ईयर हैज टू कम एंड डू दिस प्रोसीजर जब आपके पास ऊपर एक कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड प्रेसिपिटेशन पड़ी हुई है और एक स्कार डेडनेस पड़ी हुई है? व्हाट इज जी द सर। थर्ड ईयर रेजिडेंट हैज टू कम एंड डू दिस प्रोसीजर फॉर दिस पेशेंट? सर वो उसको हाउस ऑफिसर्स को थोड़ा सुपरवाइज करने के लिए। नहीं, हाउस ऑफ सुपरवाइजर आपने उसे ऑर्डर कर दिए कि ये चीजें आपने 5 चीजें करनी है कि उसका आपने लेट्स सपोज सीबीसी भिजवाना है, आपने उसका यूरिन टेस्ट भिजवाना है, आपने इसकी कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करनी है, और जी मुझे सर। आधे घंटे बाद बताना है कि अगर ये पेन ज्यादा होती हैं या कम होती हैं या रुक जाती हैं। ये कह के फिर देन यू मूव ऑन। Why is there the third year resident has to come in and do all this work for you at this stage? ये जो लेबर वार्ड है ये इसी तरह होता है ना, आप जाके देखते हो कि जी इस पे ये मैं करना है, वो करना है, वो करना है। जी सर। और इस सारे सिनारियोस के अंदर अच्छा चलो आखिरी रह गया ब्लड प्रेशर वाला, उसमें क्या करना है? सर सबसे पहले इसकी डिटेल हिस्ट्री और डायग्नोसिस को मेक श्योर करना है कि ये क्रोनिक हाइपरटेंशन है, पीआईएच है, प्री एक्लेम्पशिया है। तो सर इसकी लैब्स इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी लैब्स भेजूं और मैं इसका बीपी जो है बीपी चार्टिंग करूं, बीपी मॉनिटरिंग करूंगी इस पेशेंट की। अच्छा अब देखो बेटा, ये वाली जो सारी चीजें आ गई ना, अब हमारे पास है 10 मिनट। अब सर। डिटेल हिस्ट्री करने से आप किसी की भी नहीं ले सकते इतनी देर। जी उन 10 मिनट्स के अंदर आपने जो सेलियंट या इसके स्पेसिफिक या फोकस पॉइंट्स हैं वो आपने इसकी सिर्फ पूछने हैं
कि पहले कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खाती है कि नहीं खाती, कब से ब्लड प्रेशर है, पिछला रिकॉर्ड। क्योंकि इसकी फंडल हाइट 30 वीक्स की है और जो उसकी ड्यूरेशन प्रेगनेंसी है वो 30 वीक्स की है। पिछली दोनों प्रेगनेंसी जो उसकी हुई हैं उसमें क्या ब्लड प्रेशर था कि नहीं था। अब आगे जाके इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हुई है नहीं हुई हुई, तो आप इसका बेसिकली क्या करोगे, एक रीडिंग अगर 150-100 की आ जाती है तो क्या करते हैं। सर हमने इसको फिर रिपीट करना होता है फिर 4 आवर्स। ओके। जी सर। और सर इसको रिपीट करेंगे 4 आवर्स अपार्ट, अगर वो तब भी ज्यादा आती है ना तो बेटा फिर 4 घंटे क्या करोगे आप, घर भिजवा देंगे, जी सर लैब भिजवा देंगे। घर भिजवा देंगे। नहीं नहीं ना सर, लैब्स टेस्ट कराऊंगी मैं इसके। इसके आप चलो, आपने कहा कि जी हम इसके लैब से कर देंगे, दूसरा उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं आपके प्री इक्लेम्पशिया के वो पूछोगे। जी सर। जी अगर तो सर। उसको कोई सिम्टोमेटिक हो जाती है तो फिर यू विल नॉट वेट फॉर 4 आवर्स वो करेंगे। और नंबर टू, फिर उसका जब तक वो रहेगी आप उसका लेट्स सपोज कहते हो कि हर 15 मिनट के बाद या हर आधे घंटे के बाद इसका ब्लड प्रेशर लेके मुझे बताओ। ठीक है सर। वो कौन करेगा। हाउस ऑफिसर। थैंक यू। तो दो हमारे हाउस ऑफिसर थे, दो हाउस ऑफिसर हमारे रहते हैं केस नंबर ये, एक वो प्री टर्म को डायग्नोसिस करने के लिए और एक ये प्री क्लेम्शिया वाले की। इज दैट जी सर। ओके। जी सर। ठीक। ये आपने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाया वैसे अभी तक। फिर एक प्राइमरी ग्रेविटा थी जो फुली डायलेटेड थी, इसको किसने डिलीवर करना। सर अभी फर्स्ट थर्टी ईयर मिनट्स में है। रेजिडेंट। फर्स्ट ईयर है। आपने मेरा ख्याल 3rd ईयर डाला था इस पे। जी। Why would a 3rd year resident come and deliver a fully dilated अपना low risk patient? सर वो प्राइमी की वजह से शायद। या प्राइमरी जो है वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट नहीं डिलीवर करता आपके सेटअप में, या आपका ख्याल है कि उसको नहीं करना चाहिए। और वो तो अभी डिलीवर भी नहीं हो रही, अभी तो वो फुल डायलेटेड है। इट माइट टेक अनदर मे बी अनदर हाफ एन आवर और 1 आवर। जी। उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट ईयर रेजिडेंट। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट, उसमें सिर्फ मैक्सिमम आप कर लो कि जी हेड किस पोजीशन पे, जी। और फिर चला ठीक है कि नहीं ठीक। आपके जी डिपार्टमेंट सर। में हाउस ऑफिसर डिलीवर नहीं करता। फर्स्ट वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ प्राइमरी कैपिटा को। सर करते हैं लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा उसके क्या साथ डिफर कराना होता है, ध्यान के साथ के, क्योंकि उसमें नहीं, आप ये जरूर कहते हो जी हाउस टीयर्स अफसर, वगैरह के साथ। हाँ। हाउस अफसर अकेला नहीं कराएगा। जी सर। अंडर सुपरविजन किसी की कराना चाहे तो कर सकता है, वो अकेला दावा आ जाती है। जी। तीसरी वापस आ जाते हैं। अब आपके पास दो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज हैं इस स्टेज पे प्रॉब्ली, एक कॉर्ड वाली और दूसरी स्कार टेंडनेस वाली। जी सर। अब इसमें आपने जो बहस होनी है या डिस्कशन होनी है कि जी अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर्स कितने हैं आपके पास, और अपना उसका स्टाफ कितना है। जी। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर ही एक है फिर क्या मसला, फिर सिनारियो फर्क है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर दो हैं और दो ही एनेस्थीसिया की टीमें हैं और दो ही आपके पास आगे बाकी सारी पीड्स और हर चीज अवेलेबिलिटी है, फिर तो जिंदगी आसान है। फिर दोनों को आप रशिंग करोगे, एक को एक थिएटर में दूसरे को दूसरे में, और इन दोनों की जब आप करोगे, अब आपके पास जो बचे हैं कौन कौन बचा है? आपके पास जो आपकी मैन पावर है कौन कौन बचा है पीछे से। सर SR है, फोर्थ ईयर रेजिडेंट है। एक आप खुद हो, एक फोर्थ ईयर रेजिडेंट है, जी सर। और कौन बचा बेटा। सर थर्ड ईयर भी। एक 3rd ईयर भी है। तो नाउ जी। आपने फर्स्ट को उधर लगा दिया, दो हाउस ऑफिसर को उधर लगा दिया, बाकी एक आप हो और दो आपके साथ ये हैं। अब इसमें अगर आपके पास दो थिएटर्स हैं, अगर आपके पास दो थिएटर्स हैं, अब दोनों को राशन कर दिया है, आप दोनों किसी के साथ जाके कॉर्पोरेट वाला बेबी आउट करोगे और उसको बाकी को अपने 3rd ईयर या 4th ईयर रेजिडेंट को उसके साथ छोड़ दोगे, और देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। जी सर।
आप लेट्स सपोज मैं अगर हूँ तो मैं कॉर्ड प्रोलैप्स के साथ मैं खुद और थर्ड ईयर को जाऊंगा और स्कार टेंडेंस फोर्थ ईयर को मैं कहूँगा आप स्टार्ट करो, और वहां से बेबी आउट करके बेबी अगर ठीक होता है और कोई और टीयर वगैरह नहीं आता तो देन आई मूव बैक एंड देन गो टू दिस स्कार टेंडेंस। अगर सूट होगी तो वहाँ और कर लूंगा, अदरवाइज अगर वो ठीक होगी तो फिर वी कैन कंटिन्यू विद दिस अपना वो, तो आपकी फोर्थ ईयर रेजिडेंट है वट एवर जी सर। उसके साथ आपको जो अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि पेडिट्रिशियन अवेलेबल होना चाहिए, एनेस्थेटिक सीरियस होना चाहिए, आपने जनरल एनेस्थीसिया देना है, वो सारा कुछ वो बात ठीक है। और जो आपकी कोलैप्स और प्रेजेंटेशन की बात आ गई, इसमें तो आप पेशेंट को बैठा के या लेफ्ट लेटरल ज़्यादा देर करके तो एपिड्यूरल एपिड्यूरल क्या फाइनल या रीजनल तो की बात ही खत्म हो जाती है। इट्स एन इमरजेंसी जहाँ पे उन्होंने उसको जिए देना ही देना, जी सर। तो वो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं कि जी हम इसको रीजनल लगाएंगे वो देंगे। हाँ, अगर सर उन्होंने आज कुछ जगहों पे तो सर वो तो ठीक है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत से रीजनल में किए होते हैं ना, तो मैंने इसलिए इसको बेटा थोड़ा सा वो अवॉइड आपने किया। किए में अगर वो आपकी इंटरनेशनली गाइडलाइंस में या रिकमेंडेशंस में नहीं है और एग्जाम में आप जाके बोलोगे और कहोगे कि जी हम तो अपने लेबर वार्ड में इसी तरह करते हैं कि जी हम तो वो क्या कहते हैं प्राइमरी वगैरह जो फ्री डायरेक्टेड है उसको तो नहीं अकेला छोड़ के हाउस ऑफिसर के सर पे उस पर तो थर्ड ईयर रेजिडेंट ही जाएगा, तो फिर जी बात सर। बनती नहीं। तो अब वो अगला आपको जो उसकी की है उसके मुताबिक आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे या उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। जी ठीक है सर। नहीं उसके सर, हिसाब तो मुझे ये हाईलाइट नहीं करना चाहिए था कोर्ट प्रेजेंटेशन वाले में कि मुझे इसको से कौन से एनेस्थीसिया। नहीं आपको बताना चाहिए था, पर इसमें तो चॉइस ऑफ रीजनल अनलेस बहुत ही डायर है और बेबी लेट्स सपोज का इशू बहुत ज्यादा मसला हो जाता है, फिर आप उसको रीजनल की बात कर रहे होगे या उसको, पर इवन मुझे तो अगर उसको एपिड्यूरल भी लगा हो पेशेंट को और उसको अभी डोज मिलनी हो उसकी, जिसकी डोज मिलने के बाद इट टेक्स अनदर 40 to 45 मिनट्स फॉर इट टू बी इफेक्टिव, मैं तो उस पेशेंट के लिए भी इतना वेट नहीं करूंगा कि इसको, मैं तो विद द रीजनल उसको जिए दिला के ताकि एज सुन एज पॉसिबल वी टेक आउट द बेबी। ठीक है सर। अगर इसमें स्कार टेंडनेस के अंदर टाइप 2 की डिस्ट्रेक्शन आ रही हैं तो फिर वो आप रश करोगे और उसको फौरन इसको भी आप कोई बिठा के इस तरह करके नहीं करोगे, ये भी आप क्रिटिकल एमरजेंसी में आपको कहोगे जी आप अगले 2 मिनट में इसको एनेस्थेटाइज करें, हम बेबी को आउट करते हैं उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है कि अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास थिएटर एक है फिर क्या करें। सर, अगर थिएटर एक है तो अम, मेरे ख्याल में सर मोस्ट लाइकली फिर हमें ये कोर्ट प्रेजेंटेशन वाले को करना चाहिए, क्योंकि मेरा वो क्वाड प्री वो प्रेजेंटेशन, मैं आपको इसका बता देता हूँ, देखो क्वाड प्रेजेंटेशन जब आती है तो उसमें जनरली व्हाट मिस्टेक पेल्विक जिसने किया वो पुश करता है हेड को ऊपर और जी कॉर्ड को काइंड ऑफ स्लिप इट अवे फ्रॉम द हेड, जी ताकि उसका वो प्रेशर जो है उस टाइम पे एक्यूट वाला जो है वो ना पड़े। ठीक है सर। कॉर्ड कोलैप्स के अंदर अगर वो वजाना से बाहर आती है कॉर्ड, उसको पहला काम होता है कि उसको टेम्परेचर के लिए उसको रिड्यूस कर देते हैं इनटू द इनसाइड द वजाइना। प्रेजेंटेशन के अंदर अगर वो हेड आपको इतनी हार्ड हेड को पुश करते हो और प्रेजेंटेशन जो है आपकी कॉर्ड उसको अगर तो वो स्लिप होके साइड पे चली जाती है और फिटल हार्ट उसके ठीक हो जाते हैं, फिर स्कार टेंडनेस बिकम्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रोवाइडेड कि सही। स्कार टेंडनेस में भी आपकी टाइप 2 डी सेल्स आ रही है। अगर इसकी टाइप 1 डी सेल्स आ रही है तो आप मॉनिटर लगाओगे, कॉर्ड वाला डिलीवर करोगे, फिर आप इस पे चले जाओगे। अगर इसकी टाइप 2 आ रही है उसके अकॉर्डिंगली यू मैनेज के ब्रेडिकार्डिया के हिसाब से हमने कहा दोनों ही acute ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी हैं। ठीक है उसको सर। अगर कोई साथ दोनों वाली पेशेंट्स को सिंटो लगी हुई है या आप ऑगमेंट कर रहे हो तो वो आप उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप करने के लिए या फिलहाल के लिए ऑगमेंटेशन बंद कर देते हैं। ठीक है सर। सर आप कह रहे हैं कि अगर कॉर्ड प्रोलैप्स होता ये तो फिर ये हमारा नंबर 1 कॉर्ड प्रोलैप्स होता। फिर यस, फिर देन आई वुड हैव गॉन, इसको हम मॉनिटर लगा के करके रखते, फिर हम पोलैप्स वाले को पहले करते फिर हम इस पे आते। ठीक है सर।
प्रेजेंटेशन में अगर कॉर्ड स्लिप हो जाती है और फिर फिलहाल उसके ठीक हो जाते हैं, तो फिर देन यू कैन काइंड ऑफ वेट टिल द अदर स्कार टेंडनेस इज डन, यू आगे उसको करने के लिए। अगर आपका इसका परसिस्टेंटली ब्रेडिकार्डिया आता है स्कार टेंडनेस वाली पेशेंट में, फिर ये प्रायोरिटी आपकी ये बन जाती है। दूसरा, कई बार कॉर्ड जब आपकी कोलैप्स या प्रेजेंटेशन होती है, उसमें ब्लैडर को आप रीफिल करते हो अबाउट 500 ml से रेट्रोग्रेड, उससे भी हेड पीछे चला जाता है, तो फिकल हार्ट अगर ठीक हो जाएंगे तो देन वील मूव ऑन टू स्कार टेंडरनेस। स्कार टेंडरनेस देखो अभी इट इज नॉट अ डिहीसेस, इट्स जस्ट टेंडरनेस। टेंडरनेस पे फौरन तो नहीं आप जो आप मरीज आके कहता है कि जी मेरे तो यहाँ दर्द हो रही है नीचे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जहाँ स्टिचेस लगे हुए, तो आप उसका फौरन सेक्शन कर देते हो। उसकी पल्स देखनी होती है, उसका अपना पल्स के साथ साथ आपने उसकी फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, एंड देन एक्चुअली यू डिसाइड, एंड ऑफ कोर्स पेल्विक करके उसकी डायलिटेशन देखने के बाद आप यू डिसाइड करते हो कि हमने क्या करना है। और ये जो जी सर। डिस्कशन वाला पार्ट इसमें लिखा हुआ था, उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन आपने मुझसे लेनी चाहिए थी, जो ये बात की आपने जो, लेकिन आपने आके माशाल्लाह वो तकरीर एक स्टार्ट की फ्रॉम 0 मिनट, और मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं बीच में कुछ बोलने की जसारत करूं, और आपने वो 10 मिनट पे ऑन द क्लॉक अपनी तरफ से फारिग करके चले गए। और इवन जब आप ये बता भी रहे थे, उसमें आपने मुझे नीचे वाले केसेस में नहीं बताया कि उसके सर पे कौन खड़ा हो। देर इज अ जी सर। पॉसिबिलिटी कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कि आपके प्री टर्म वाला और रेस बीपी वाला एक बच्चा इन दोनों को मॉनिटर कर लेगा हाउस ऑफिसर। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? यू कैन, उसका ब्लड प्रेशर लेना है, उसके टेस्ट भिजवाने हैं, वो वहाँ खड़ा है। और वो ये हाउस अफसर आपको जाके हेल्प आउट कर सकता है, आइदर उसमें डिलीवरी में भी जा सकता है, या आपकी जो बेहतर है कि आपकी जो है ये जो सेक्शन के लिए आप शिफ्ट करा रहे हो उनकी शिफ्टिंग में और उसको प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। जी सर। अब इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है तो मुझे बेटा बता दो। सो सर मैं जी, हाँ सर, वो मैंने वो प्रीटम वाले का पूछना था कि उसको मैंने मतलब अभी तो हमने पहले ऑब्जर्व करके उसको डायग्नोसिस प्रीटम का कंफर्म करके उसके बाद हम उसको मतलब टोकोलिसिस दे सकते थे। वो दे सकते थे, व्हाई नॉट। 32 वीक्स पे है ना बेटा, जी सर। तो लिखा हुआ है 32 वीक्स पे। कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टोकोलिसिस है उस नहीं पेशेंट? यू जस्ट नीड टू रूल आउट कैनी, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टोकोलिसिस? सर कोई भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो, पेशेंट्स स्टीरॉइड्स पे हो, और साथ में स्टीरॉइड्स पीपॉम। का हमें समझ नहीं आई बेटा। स्टीरॉइड्स, व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन जो स्टीरॉइड्स पे है उसको हम सर टोकोलिसिस मतलब नहीं? कुछ पेशेंट नहीं सर, कुछ पेशेंट्स जो सिस्टेमिक इलनेस के साथ होते हैं उनमें कहते हैं लाइक कि टोकोलिस। लाइक सर जो कि कोई भी मतलब हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, कोई भी एस्थमा का पेशेंट हो, इस तरह का कोई पेशेंट हो तो। बेटा, कौन सा हार्ट डिजीज का पेशेंट जो है वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं? मुझे नहीं सर, बोलिए। मैं सिर्फ स्टेरॉइड्स की बात नहीं, मतलब हार्ट डिजीज नहीं, में आप ही ने स्टेरॉइड्स की बात नहीं करी। मैं सिर्फ सिस्टम मैं इलनेस की बात करी कि पेशेंट को कोई भी मेडिकल डिजीज हो, या इस कोई कोई कोमोर्बिडिटीज हो। डॉक्टर साहब देखो, ये स्टीरॉइड का कॉन्ट्राइंडिकेशन का लफ्ज किसने लिया इस सिनारियो में? अम, यू हैव टू बी सर वेरी, अगर नहीं मेरी बात सुनो बेटा। यू हैव, मैंने जी तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब का सवाल पूछा है आपसे, जो नॉर्मली इम्तिहान में नहीं जी पूछा करते, कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कोरियो, सॉरी कोरियो कह रहा हूँ, ऑफ contraindication for tocolysis in a patient. सर अगर You पेशेंट start and you start with KG patient को कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो या उसको स्टीरॉइड्स पे, वो एग्जामिनर तो नहीं छोड़ेगा आपको। इफ यू कमिंग इन एंड डूइंग अ फेलोशिप एग्जामिनेशन एंड यू टेलिंग मी कि स्टीरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टोकोलिसिस, जी सर। ये बात तो मतलब है कि मेरी तो समझ से बाहर है कि इस स्टेज पे आके
अगर हम ये कहेंगे, वो कहेंगे जी बेटा फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि फिर आप 6 मंथ्स के बाद दोबारा फिर आओ। ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीजें करना, ये तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर रेजिडेंट का सवाल है जो मैंने आपसे भी पूछा। जी सर। और इम्तिहान में भी यही होता है। इसमें तो बेटा स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं जब आप उसको टोकोलिसिस कर रहे होते हो फॉर, तो आप उसकी मतलब एक स्टीरॉइड्स आर इंडिकेटेड जिसमें आप ये टोकोलिसिस करते हो। टोकोलिसिस की इंडिकेशन है कि जिसमें स्टीरॉइड का कवर के लिए आपने 24 आवर्स के लिए करना इन सर्टेन केसेस। जी सर ठीक। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, आप मुझे किधर ले गए, सॉरी। सर इसमें हम बता सकते हैं कि एनी मैटरनल कोमोर्बिडिटी जो कि अनकंट्रोल्ड है, फीटल कॉम्प्रोमाइज और जो है एक्टिव लेबर में, और पोरियो एपीएच ऐसी मतलब कंट्राइंडिकेशंस में हम नहीं करेंगे जनरल। यस, यही बातें जब आपने उसको टोकोलिसिस का या उसका डायग्नोसिस करना है, तो चीजें आपने जो फोकस हिस्ट्री में आप ये सब चीजें पूछोगे। उसे फीवर नहीं है, उसको कोई गंदा डिस्चार्ज नहीं है, उसकी लीकिंग तो नहीं होगी, लीकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। वो कंफर्म करने के बाद फिर देन यू डिसाइड कीजिए हमने इसको ये लेबर में जा भी रही है कि नंबर 2 की नहीं जा रही, और नंबर 3 कि हमने इसको करना है कि नहीं करना। सर पोरियो में अगर बहुत अर्ली लेबर में है पेशेंट और पोरियो में जा रही है, तो भी हम जो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आप ओनली कर सकते हो कि अगर आपने उसको स्टीरॉयड का कवर करके उसको वो लगाने, और आपकी नर्सरी के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है कि अपने बच्चों को उसे कर सके। लेकिन अगर वो माइल्डली सा रेज्ड है, लेकिन अगर उसको फुल ब्लोन कोरियो है तो फिर देयर इज नो इंडिकेशन फॉर डूइंग अ कोरियो। ठीक है सर, थैंक यू। तो किसी और का कोई क्वेश्चन? सर बात इसमें ये है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि सर अगर ये तो मतलब 2 2 मिनट्स हमने हर स्टेशन में देने हैं ना, तो अब इसमें तो मैं एग्जामिनर से कोई वो एग्जामिनेशन के मांग सकती हूँ मैं कि मुझे कुछ, अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन फाइंडिंग है इस। जाहिर आप बेटा पूछोगे तो उसे कि आपने कुछ अगर उसका डायग्नोसिस बनाना है या उसकी आगे मैनेजमेंट प्लान करनी है, वो उसके हिसाब से ही होगी ना। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पे आप क्या जाओगे लेबर रूम, तो आप उसकी अपना मैनेजमेंट प्लान कर लोगे किसी पेशेंट। एक पेशेंट आपके पास आती है, आप लेबर रूम एंटर होते हैं कि सर उसको स्कार टेंडेंस हो रही है, आपको आगे शिफ्ट कराओ उसको। इस तरह करते हो आप इस सेक्शन के लिए। नो सर। उसकी वैल्यूएशन पहले करते हो कि जी स्कार टेंडेंस है, कंटिन्यूस है कि विद कॉन्ट्रैक्शंस है, यूटीआई तो नहीं है, बाकी सब चीजें रूल आउट करने के बाद देन यू असेस फीटल हार्ट और योर पेल्विक एग्जामिनेशन। देन यू डिसाइड कि हमने इसका सेक्शन करना है कि नहीं करना। क्या आप एंटर हो गए और आपको आवाज आए स्कार टेंडेंस से, आपको जी शिफ्ट कराओ, बाद में पता चला कि जी उसका तो पहले कोई सेक्शन ही नहीं हुआ हुआ था। तो जो आपको फोकस पॉइंट्स चाहिए वो आपको पूरी हिस्ट्री में मिलेंगे, तो ही आप आगे चल सकोगे। जिसके आपका पूरा है इंफॉर्मेशन, जाहिर है उस पर फिर आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो वो बन गया डायग्नोसिस, फिर हम आगे लेके चलो। और इसीलिए इसमें टिपिकली लिखा गया था कि जी के आप डिस्कस करोगे पेशेंट के साथ, ताकि बाकी को जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली हुई मे बी वो एग्जामिनर की आंसर शीट के अंदर उसको दी हुई इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि जी अगर वो मरीज पूछेगा जी ये कॉर्ड किस लेवल पे है, वो बता देंगे आप ठीक है सर। सर कि जी ये जो ब्रेडिकार्डिया आया है 105। सर हमें आया था, जी सर जब हमें सिनेरियो आया था तो एग्जामिनर ने जस्ट ये कहा था हाउ विल यू मैनेज, बस इतना लफ्ज बोला था बस। बेटा, उस मैनेजमेंट के लिए तब भी फिर तो उसने या तो उन्होंने फिर सारी कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन आपको दे दी होगी तब उस क्लिनिकल सिनारियो के अंदर या उस स्टेशन के अंदर हो सकता है आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो जो रिक्वायर्ड है फॉर मैनेजमेंट ऑफ दैट पेशेंट वो ऑलरेडी उसमें शायद लिखी हो।
मैं तो ये जो मुझे सिनारियो दिए गए थे, मैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या सोच रहा था कि अगर मैं लेबर में जाऊंगा तो मगर मैं एंटर ही होता हूँ सुबह 8 बजे और ये सारी चीजें होंगी, तो पहली चीज तो मैंने जाते साल पहले ये पूछूंगा, ये जो कॉर्ड कोलैप्स जो हुआ है, तो ये जो मॉर्निंग वाला रात वाला था वो क्या करके गया इसके लिए, इसकी मैनेजमेंट अब तक क्या की है, या ये आया मेरी हिसाब है। ये तो ओवर बिल लिया आपने सुबह 8 बजे आके उससे, वो तो खैर अकेला था। खैर दैट्स अ डिफरेंट मतलब है कि डिबेट वेयर आई डोंट वांट टू गो। लेकिन बात ये है कि जब आप आते हो तो आपको, मेरा तो अपना अंदाजा है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, फिर ही आप किसी के आगे मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। हाफ बेक तो नहीं कर सकते, या सोचने पे तो नहीं कर सकते कि जी के ये हो गया तो फिर हम ये कर लेंगे, ये हो गया। कॉर्ड कोलैप्स वाले और ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो 7-8 सेंटीमीटर्स हैं और मल्टी ग्रेविडा हैं, दे कैन ऑल्सो बी डिलीवर्ड। कि आप पुश करो कॉर्ड पे शायद और वो हो जाती है, यू कैन अपना वेंटूज या जब तक वो अगर मतलब यू अंडरस्टैंड कि जो मल्टीज जो है वो कितनी जल्दी फुली होती है, हेड की पोजीशन, इस सब चीज़ों पे होता है। और अगर किसी हमें कॉर्ड कोलैप्स वाले पे लेट्स सपोज हमें थिएटर नहीं अवेलेबल, ये लिखा तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है, पर अगर हमारे क्लिनिकल सिनारियो के अंदर अगर थिएटर अवेलेबल नहीं है तो मे बी हमें शायद से निफाडेप्रिन या कुछ इस तरह क्या कहते हैं टोकोलिसिस का फॉर द टाइम बिंग, जब तक हमें थिएटर नहीं मिलता और ये हमने डाल दिया और कॉन्ट्रेक्शंस को स्टिल आई जा रही है, वो भी दी जा सकती है, ट्राई तो किया जा सकता है कि एटलीस्ट खत्म तो नहीं होंगी, शायद उसे थोड़ी सी मेलोडाउन या स्लो डाउन जरूर हो जाए, ताकि हमें टाइम मिल जाए कि हम अगले पेशेंट के ऊपर डिजायर है, पेशेंट थिएटर से निकलेगा तो अगला मरीज जाएगा ना, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। तो उसके हिसाब से एज अ सीनियर स्टार यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स एट दैट टाइम। पर ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगे, फिर आई थिंक यू कैन ऑलवेज डिसाइड अपॉन कि जी हमने इसकी मैनेजमेंट इस पॉइंट ऑफ से की। ये स्कार टेनिस वाला पेशेंट लेस्पोज आ जाता है और इसकी ये है, मैं जाके सीटीजी लगाता हूँ, सीटीजी दोबारा नॉर्मल हो जाती है, और उसका हो सकता है ब्लैडर फिल था वो अगर एम्प्टी होता है तो उसके बाद स्कार टेनिस खत्म हो जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर भी क्या हम उसका प्रीवियस वन है तो हम उसका सेक्शन कर देंगे कि उसको मॉनिटर लगा के फिर देन ऑब्जर्व, और जब तक आप ये कॉर्पोरस वाले को मैनेज करते हो उसके बाद फिर आप इसको देख लोगे कि जी आप इसको हमने इसकी प्रोग्रेस देख लोगे, इसके फीट लाट देख लोगे, इसकी वो जो अकॉर्डिंग टू दैट देन यू डिसाइड कि हमने अगर लेवल में जा रही है नहीं जा रही, लेटेंट में है कि एक्टिव फेज में है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ नहीं आ रही है इस टाइप से, या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर कह रहा हूँ तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते जी सर, समझ आ गई। हो। समझ आ गई, आवाज भी आ गई, मेरा तो ख्याल था शायद जी आवाज सर, खत्म हो। जी सर, जी सर, आ गई है समझ। आ रही है सर। चलो चलो, मेरा ख्याल है सर अस्सलाम वालेकुम। इमरान अपना, वालेकुम सलाम। सर नेक्स्ट वीक पी सेप्सिस रख ले। सर मैं कर दूंगी प्रेजेंट। सॉरी बेटा, क्या चीज? पी सेप्सिस सर, पी सेप्सिस नेक्स्ट वीक टॉपिक रख ले। चलो ये आप इमरान को ही मैसेज करो, वही ठीक है सर, मुझे तो टॉपिक भी वही एक्चुअली रहता है, भिजवाता है, उसे आप ठीक बता है। देना तो वी कैन कवर इट सेप्सिस आल्सो, दैट्स नॉट। ओके थैंक यू सर। सर हमें पास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके अगर स्टेशंस आप करवा देते हैं हर वीक, थोड़ा सा इस तरह भी हमें गाइड हो जाएगा। मेरे पास वो स्टेशंस नहीं है तो मैं सर जाके, हमारे पास होते हैं। सर यही स्टेशन है जो आप करवा रहे हैं, यही चीजें आती हैं, जैसे पी सेप्सिस जरूर आता है, यही है जो आप करा रहे हैं, यही स्टेशन आते हैं। चलो Yes, अगर पेशेंट के 28 वीक से कम है मैग्नीशियम सल्फेट बोल सकते हैं वहाँ पे टोकोलिसिस के लिए एग्जामिनर को। उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है 28 वीक्स में तो यू कैन, व्हाई नॉट। लेकिन अब मैग्नीशियम का जो रीसेंट पेपर मैंने अभी पढ़ा है उसमें उसका रोल काम कर दिया, और ये जो है इंट्राक्रेनियल हेमरेज के लिए बच्चों के लिए उसकी प्रिवेंशन के लिए कर रहे थे, लेकिन उसकी अब वो थोड़ा सा फेवर से नीचे चला गया। ये मुझे किसी ने उसकी समरीज 3-4 भिजवाई हुई हैं,
वो मैं शेयर जरूर कर लूंगा, चाहे इमरान के साथ चाहे किसी ग्रुप में। वो ना करूँ तो इमरान को आप याद करा दीजिएगा, मैं वो जरूर भिजवा दूँ। और ये जो मेरा ख्याल का आर्टिकल है इसका, ये कॉर्ड कोलैप्स का और प्रेजेंटेशन का, वो भी मेरे पास है। वो भी मुझे कहोगे तो मैं भिजवा दूंगा। जी सर, भिजवा दीजिए। हेलो जरूर। सर। इसका कहीं पे भी हमें इसका टॉपिक कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ पेशेंट मैनेजमेंट का, इस लिहाज से जैसे किस आप चीज का? जो आपने आज हमें पढ़ाया है ना, ये टॉपिक कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ पेशेंट मैनेजमेंट का स्टेप वाइज। क्यों नहीं लिखा हुआ? आप सारी उम्र पढ़ते रहे, तो मैंने तो आपके साथ वो भी निकाला है, वरना वो किताबों में लिखा, मैंने पढ़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है ना? चलो जो भी है, दैट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर वो मेरे पास इस पे है, सर ये आपने हेलो आई सर, विल सेंड इट टू इमरान, और इमरान आपसे शेयर कर ले। ठीक है, चलो ओके। फिर मैं ख्याल है इमरान डॉक्टर शनाज ने आना है। गाइनी बोर्ड भी करवाए हमने। जी सर, आना सर। चलो बेटा, आपको जो जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं आप उनको जरूर भिजवा दो। विल ट्राई कि हम उसको किस तरह, इतनी सारी तो हमारी क्लासेस हैं, तो उसमें किसी में जरूर एडजस्ट कर लें। चलो ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।